آغاز میں سب سے پہلے بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو ملک کی داخلی سیکیورٹی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بریف کیا گیا۔ سپہ سالار نے ادارے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عثمان خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے NCOC کا دورہ کیا۔ DG ISI بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کورونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کی تعریف کی۔ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کو ریٹائرمنٹ پر مومنٹو سے نوازا گیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا NCOC کا دورہ، DG ISI کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے NCOC کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈائریکٹر جنرل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میجر جنرل آصف محمود نے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ NCOC نے کورونا کے خلاف قوم کی جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے وبا کے خلاف فوری رسپانس پر تمام اکائیوں کی تعریف کی۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کو ریٹائرمنٹ پر مومنٹو سے نوازا۔ اور وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں DG ISI کی تقرری کے حوالے سے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ وہ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے۔ ISI سے میں نے کیونکہ انٹرو لیا تو اسی سے پہلے کامنٹ کر دیں، کب تک توقع ہے کہ یہ جو گم گویا بے یقینی ہے ہم اس سے آگے نکل جائیں؟ میرا خیال میں یہ کسی بھی وقت جو ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی تعیناتی ہو جائے گی اور وزیر اعظم آفس جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ پرائم منسٹر صاحب جیسے فیصلہ ہوگا سب کے علم میں آ جائے گا، اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اب تمام تر جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ایک طے ہیں اور کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پہلے جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں کے اوپر، اب وہ ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں۔ اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں معاملات طے ہو گئے اور اپوزیشن کے ہاتھ صرف مایوسی آئی۔ حزب اختلاف جمہوریت پسند نہیں بلکہ ڈیل کی منتظر ہے۔ ان کا کام ہی لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے کا شور ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست اب ختم ہو چکی، وہ رینٹک کراؤڈ کا کام کریں۔ سارے معاملات حل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اپوزیشن کا تو کام یہ رہ گیا ہے کہ ہر بات کے اوپر رک کے مر گئے، برباد ہو گئے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی اپوزیشن پر تنقید، کہا ہر بات پر سیاست نہیں کی جاتی، اپوزیشن کی نہ کوئی انتظامی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی معاشی پالیسی۔ کوئی ان کو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید فوج اور حکومت میں اختلاف ہو جائے تو 2 دن سارے ہنستے مسکراتے رہے، اب وہ مسکراہٹیں پھر جو ہیں ختم ہو رہی ہیں اور تنقید کا رخ دوبارہ فوج کی طرف ہو گیا۔ کوئی جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ صرف ڈیل کی تلاش میں۔ فواد چودھری نے پہلے تنقید کی اور پھر اپوزیشن کو بڑی اصلاحات پر ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ ہمارے ساتھ بیٹھے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آگے چلیں، ہمارے ساتھ بیٹھے نیب لا کے اوپر آگے چلیں۔ اگر صرف ہر وقت یہی لگا رہنا ہے کہ میرے کیس ختم کرو، ابا جی کے کیس ختم کرو، بابو جی کے کیس ختم کرو، چاچا جی کے کیس ختم کرو، یہ اس کے اوپر تو بات نہیں ہوتی۔ ایک سوال پر فواد چودھری نے مولانا فضل الرحمان پر بھی چوٹ کر دی۔ جتنا استعمال ہونا تھا فضل الرحمان صاحب نے وہ استعمال ہو چکے، اب وہ گھس گئے، اب ان کی اہمیت نہیں رہی ہے اور اب اس طرح کی باتیں وہ کرا کے صرف پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور کے اوپر اب ایک چلی ہوئی کارتوس ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ صرف عمران خان کو برا بھلا کہنے سے اقتدار نہیں مل سکتا، اپوزیشن کی دکان پہلے بھی نہیں چلی، آئندہ بھی نہیں چلے گی۔ مہنگائی کا مارچ تک، تفصیلات جانیے کچھ ہی دیر میں۔ IMF سے ڈیل میں تاخیر اور درآمدی بل نے پاکستانی کرنسی کی کمر توڑ دی۔ امریکی ڈالر نے بلٹ ٹرین کی رفتار پکڑ لی۔ انٹر بینک میں 173 روپے کی تاریخی سطح پر ٹریڈ ہوتا رہا۔ پاکستان کے پاس صرف 3 ماہ کی درآمدات کے لیے ڈالرز رہ گئے۔ روپے کی بے قدری سے اسٹاک مارکیٹ بھی دباؤ میں آ گئی۔ سید رضوان عالم کی رپورٹ۔ ڈالر کی لمبی چھلانگ،
1.5 साल बाद एक दिन में 1 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया। दौरान ट्रेडिंग डॉलर 173 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा, जिसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से मदाखलत देखी गई और रुपए की गिरती कदर को कुछ सहारा मिला। कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 172 रुपए 78 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। माहिरीन रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी को IMF से होने वाली डील से जोड़ रहे हैं। हुकूमत अगर अपने अखराजात के लिए बार बार IMF के पास जाएगी तो उनको उनकी बात माननी पड़ेगी और डॉलर को रेट बढ़ाना पड़ेगा और रुपया डिवैल्यू करना पड़ेगा। जिस तरीके से करेंसी आपकी वीक हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि IMF ने आपको यही कहा होगा कि भाई आपका इम्पोर्ट बिल किस तरह नीचे आ सकता है। उसकी एक ही वजह हो सकती है कि आप रुपये को वीक कर ले। रुपए की बेकदरी के हवाले से बैंकारी जराए ने समा को बताया कि हालिया दिनों में 1 अरब डॉलर की कर्ज वापसी से पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 माह की दरामदाद के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। इसके साथ साथ डॉलर मजीद महंगा होने का खौफ भी रुपए की बेकदरी की वजह बन रहा है। इधर IMF से डील में ताखीर और रुपए की गिरती कदर ने पीर को स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को भी परेशान कर दिया। बेहतर होती स्टॉक मार्केट फिर दबाव में आ गई और 100 इंडेक्स 192 पॉइंट की कमी से 44,629 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। बुलेट ट्रेन की सी रफ्तार से बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए वजीर आजम ने बड़ा फैसला कर लिया। अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस को कम करने की हिदायत कर दी। वज़रा को अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखने का टास्क भी दे दिया। इमरान खान ने 2 टोक कह दिया, जखीरा अंदोजों और मसनूई महंगाई में मुलव्वस अफराद को अब नहीं छोड़ेंगे। महंगाई को डालेंगे लगाम, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। खाने पीने की जरूरी अशिया की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला कर लिया। मुंतखब नुमाइंदों को मसनूई महंगाई पर नजर रखने की हिदायत कर दी। मुआशी सूरत हाल पर इजलास में इमरान खान ने वज़रा को टास्क दे दिया। इजलास में वजीर आजम को महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने 2 टोक कह दिया कि जखीरा अंदोजों और मसनूई महंगाई में मुलव्वस अफराद को अब नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। और ऐसे में जब तारीखी महंगाई पर अपोजिशन ने एहतजाज की ठानी, अवाम ने भड़ास निकाली तो हुकूमती वजीर वजाहतें देने लगे। वफाकी वजीर असद उमर ने साफ कह दिया, अगले साल मार्च से पहले आलमी कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। साथ ही टारगेटेड सब्सिडी का इंदिया भी दे दिया। अवाम को घी, चीनी और आटे समेत जरूरी अशिया पर रिलीफ मिलेगा। इसका जिक्र सिर्फ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और वो है महंगाई। दुनिया ने एक आफत का सामना किया और वो कोविड है। जरूरी अशिया हैं, उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निज़ाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ। दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस 12 माह के अंदर 81.55% का इजाफा आलमी मंडियों के अंदर और पाकिस्तान में उसकी निस्बत 17.55% इजाफा। गैस की कीमतें, LNG की कीमतें दुनिया की मार्केट के अंदर उसमें 135% इजाफा हुआ। औसतन पाकिस्तान में 16% जो है गैस की कीमत में इजाफा देखा गया। महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है वो खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा है। आलमी मंडी के अंदर इजाफा 48% और पाकिस्तान के अंदर 38% हुआ। टारगेट है कि 45 से 50 रुपए kg कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। पंजाब में और सिंध के अंदर आटे की कीमत है 20 kg के ऊपर 290 रुपए का फर्क है। कोई वजह नहीं है कि सिंध के अवाम को इतनी ज्यादा कीमत आटे की देनी पड़े। चीनी के ऊपर जी दरामद का फैसला कर लिया गया है। 3 लाख टन की दरामद की जा रही है। 90 रुपए kg का टारगेट सेट किया गया है। टारगेटेड सब्सिडी का एक प्रोग्राम लाया जा रहा है। वजीर आजम इस प्रोग्राम की तफसील अनाउंस कर देंगे। मार्च के अंदर हमें ये जो कमोडिटी प्राइसेस का जो गैर मामूली इजाफा देखने में आया था वो कम होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है जून तक भी चले और जाहिर है उसके बाद ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जो रिलीफ आती है वो रिलीफ फिर अवाम को भी बर वक्त तरीके से पास ऑन हो। कोशिश वजीर आजम की यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिलीफ अवाम को दिए जा सके वो दें। इसी कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कमर कस ली, जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में जज्बाती खिताब में कहा, बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है, ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है। महंगाई का सुनामी इस हुकूमत को बहा ले जाएगा।
कल 12 रबीउल अव्वल है। 3 दिन पहले रियासत मदीना का दिन रात नाम लेने वाले उन्होंने महंगाई का एक और सैलाब में आवाम को डुबो दिया है। रियासत मदीना में कोई भूखा रात को नहीं सोता था। बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है। 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है। बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ। गरीब, यतीम और बेवा से मुफ्त दवाई छीनकर उनको मौत के कुएं में धकेला जा रहा है। 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। जो LNG $10 में पड़ती थी आज $56 में पड़ रही है। तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई के बम, ड्रोन हमलों के जरिए तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। बिजली पेट्रोल महंगा हुआ, अब है लग्जरी आइटम्स की बारी। IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए स्मार्टफोन्स, मक्खन, पनीर समेत खाने पीने की मुताद्दिद दरामदी अशिया पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ गई। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कौम मायूस ना हो, बैंकर हमेशा डू मोर का मुतालबा करता है, हम अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। शकील अहमद की रिपोर्ट। $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बाद अब गैर जरूरी लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर शुरू। महंगा फूड आइटम आता है या बाहर से जो लग्जरी चीज़ें आती हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन है जो 3-3, 2.5 लाख रुपए के, ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो उसमें महंगाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और इम्पोर्टेड गाड़ियां भी महंगी होने का इम्कान। दवाओं के सिवा मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली 578 अरब की सेल्स टैक्स छूट में नुमाया कमी मुतवक्के। बरामदी शोबे को सपोर्ट बरकरार रखी जाएगी। दूसरी तरफ मुशीर खजाना ने IMF के साथ मुज़ाकरात में नाकामी का तासुर यकसर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। जो लोगों ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तासुर दिया है कि हम लोग फेल हो गए हैं और इसमें नाकामी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे ये कामयाबी की तरफ जाएंगे। जो एक बैंकर होता है ना, जब आप उसको लोन लेने जाते हैं वो डू मोर वाली बात करता है। वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। रेड लाइन क्रॉस हो गई, PDM को लगता है, इसीलिए महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं उनका मुतालबा इन हाउस तब्दीली या फिर बल्दियाती इलेक्शंस नहीं बल्कि आम इंतखाबात हैं। धांधली से आई हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून देने का कोई हक नहीं। ये लोग अब की बार मशीनों के जरिए इलेक्शन चुराना चाहते हैं। 20 अक्टूबर से महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में रैलियों का आगाज हो जाएगा। मुजाहरे होंगे, क़याम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। हमारा मुतालबा जनरल इलेक्शन का है। हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। असेंबली के अंदर की बात अगर होती तो फिर हम पीपल्स पार्टी की बात मान लेते ना। ये PDM के आज के फैसले हैं। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। नेब का इदारा ही आमिरियत की बाकियात में से है और उसने हमेशा मुखालिफिन यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस इदारे से एहतसाब की कोई तवक्को नहीं है। PDM दर हकीकत RTS का एक दूसरा नाम है। जो हुकूमत खुद धांधली के नतीजे में आई है उसको हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क को एक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात के लिए फार्मूला या कानून दे सके। ऑपोजिशन के इंजन जवान हैं मगर धुआं दे रहे हैं। PDM मरा हुआ हाथी है। शेख रशीद कहते हैं यकीनन महंगाई है मगर इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि मरियम नवाज अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही हैं।
PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है। पिछले दिसंबर में हमें कहते थे अस्सलाम वालेकुम, अब ये दिसंबर आ गया, कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया 15 अगस्त से। हैं ये नौजवान इंजन, लेकिन इनके इंजन धुआं दे रहे हैं। अब ये डिवीजन वाइज जुलूस निकालेंगे। कितने महीने रह गए हैं? 22-21 महीने रह गए हैं नए इलेक्शनों को। महंगाई है, ऑफ कोर्स है, कोरोना हुआ, कर्जे थे, उसकी किस्तें देनी थी। जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर में महंगाई हो। मैं समझता हूं कि इमरान खान अपनी पूरी काविश और कोशिश कर रहा है और हमें इस साल के अंदर अंदर इस चीज को खत्म करना। ये इमरान खान की खुश नसीबी है कि उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है जो अभी तक 3 सालों में यही फैसला नहीं कर। देखें ना, चौथे साल में हम लग गए। अब ये जुलूस जलसे 2-3-4 महीने करेंगे, साल खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अदारों पर जो कुछ कहा है, इससे ज्यादा इंतहाई गैर जिम्मेदारी का, और खुद अपने लिए वो गड्ढे खोद रही है। पहली हुकूमत को घर भेजने में भी उनका बहुत बड़ा दखल था। और अब जानिए नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में क्या हुआ। 40 अरकान गैर हाजिर रहे। शरीक अरकान में से एक सेनेटर ने तजवीज दी, जल्द फैसले करना होंगे। शहबाज शरीफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की तजवीज मांगी तो अक्सरियत ने दूसरी जमातों के मुजाहरों में हिस्सा लेने की बात कर दी। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। 40 अरकान पार्लियामेंट ने लीगी सदर की मीटिंग को अहमियत ही न दी और गैर हाजिर रहे, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हाजिरी तसल्ली बख्श नहीं। लीगी पार्लियामेंटेरियंस ने समा को बताया कि एक अहम लीगी सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर ने तजवीज दी कि हुकूमत की इदारों से मौजूदा टेंशन में हमें जल्दी फैसले और इन पर अमल दरामद करना होगा। इजलास में शहबाज शरीफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर तजावीज मांगी तो हैरान कुन तौर पर अक्सरियती अरकान ने खुद एहतजाज की जिम्मेदारियां लेने की बजाय दूसरी तंजीमों का कंधा इस्तेमाल करने की बात कर दी। अरकान का कहना था कि हमें ताजरों, लेबर तंजीमों और वकला के एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए। एक अहम MNA ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप क़यादत करें तो हम भी आपके साथ होंगे, और अगर अब भी हम ना निकले तो लोग हुकूमत के साथ साथ हमारे गिरबानों को भी पकड़ेंगे। समा, लाहौर। और चीनी की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जहांगीर तरीन की शुगर मिल JDW से 900 मन चीनी की कोयटा मुंतकली नाकाम बना दी गई। मिल इंतजामिया का कहना है कि उनका किसी गैर कानूनी काम से ताल्लुक नहीं। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मिशन। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। महकमा खुराक ने JDW शुगर मिल्स यूनिट 1 रहीम यार खान से 900 मन चीनी गैर कानूनी तौर पर कोयटा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हुक्काम के मुताबिक चीनी के इस सौदे को रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर महकमा खुराक ने पुलिस के हमरा कार्रवाई की। चीनी से लदे ट्रक को चाचड़ा शरीफ टोल प्लाजा पर तहवील में लिया गया। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार ड्राइवर इस्माइल से तफ्तीश की जा रही है। उधर तर्जुमान JDW का कहना है कि शुगर मिल्स का काम चीनी फरोख्त करना है। खरीदार चीनी कहां ले जाता है इससे इंतजामिया का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर उन्हें आयद किए गए जुर्माने की नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया है। शुगर मिल्स को महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर मसाबकती कमीशन ने जुर्माने की नोटिस भिजवाए थे। रिपोर्टर अशरफ अली के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। आगे देखिए गैंग का वार, हथियार तैयार। क्वेटा में पुलिस ट्रक के करीब धमाका, एक अहलकार जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए। CCTV वीडियो सामने आ गई। धमाके के बाद कैसे भगदड़ मची ये देखा जा सकता है। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार। पुलिस के मुताबिक धमाका सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के दरवाजे के करीब हुआ, जहां पुलिस के एक ट्रक को मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। धमाके के बाद इमदादी टीमें और पुलिस की इजाफी नफरी मौका पर पहुंची और जख्मियों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ईडी के जरिए और मुख्तलिफ एम्बुलेंसों ने उठा के जो सिविल के लिए शिफ्ट किया है, तो अभी मैंने जो मालूमात की हैं तकरीबन 8 के करीब जख्मी है, जिसमें एक शदीद जख्मी है।
पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मियों में अक्सरियत पुलिस एहलकारों की है जो हुशाब में जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से इजहारी यकजहती के लिए होने वाले एहतजाज की हिफाजत पर तैनात थे। बीडी टीम के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। 4 से 5 किलो धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें धमाके के बाद राहगीरों को भागते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर आला जाम कमाल ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। और शिमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के सिपाही सैफुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 25 साला सिपाही सैफुल्लाह शहीद हो गए। सिपाही सैफुल्लाह का ताल्लुक करक से है। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सादिकाबाद में इंधड़ गैंग का खौफ, पुलिस कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू ना कर सकी तो लोगों ने खुद हथियार उठा लिए। घरों पर, दुकानों पर, मोहल्ले की सड़कों पर गनमैन तैनात हैं। बात कर लेते हैं इमरान आसिफ से। इमरान, पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है, ये क्या हो रहा है सादिकाबाद में? जी बिल्कुल, पुलिस जो है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह से नाकाम है, क्योंकि इंदर गैंग के हाथों 8 रोज कबल जो है 9 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद जो है माही चौक के इलाका मकीन जो है वो शदीद खौफ और हिरास का शिकार है। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए जो है खुद ही जो है हथियार उठा लिए हैं और गनमैन जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने एहतजाज किया था इंदर गैंग के खिलाफ, जिसके बाद इन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही थी। 8 रोज गुजरने के बावजूद इस इलाके में जो है वो कारोबार अभी तक जो है वो बंद है, दुकानें जो है नहीं खुल सकती हैं, लोग शदीद खौफ और हिरास का शिकार है, जबकि पुलिस भी कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं ला सकी, जिसकी वजह से लोगों ने। तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात की है। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ पायदार और रिवायती ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी बहरान के पेश नज़र आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। एंजेला एगलर ने हर सतह पर पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। कुछ दीगर खबरें, गाड़ी के बोनेट पर बैठने से मना क्यों किया? लाहौर में मामूली सी बात पर झगड़ा 3 भाइयों की जान ले गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। गाड़ी के बोनेट पर बैठने से मना क्यों किया? फरीकैन में तनाज़े की बुनियाद बनी यह मामूली बात। झगड़ा इतना बढ़ा कि 3 भाई कत्ल हो गए। इलाके में अंधाधुंध फायरिंग और खून रेजी के बाद दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाकया गुज़िश्ता रात शाहदरा टाउन जहांगीर पार्क में पेश आया। उसने दिल में रखी है लड़के ने, वो गया बाहर से 10-12 लड़के भी उसके साथ वो आया, उधर से फायरिंग शुरू कर दी, इधर से फायरिंग शुरू कर दी। पहले एक भाई गिरा मारा, उसको दूसरा पकड़ने के उसको भी फायर लगा दी, मार दी उन्होंने, फिर तीसरे को भी, और जो मल्लेदार उनको उठाने जाता था उसको भी फायर करते थे। मुकदमा में एक खातून को भी नामजद किया गया है, जिसने तहरे कत्ल की वारदात के लिए अपने भाइयों को शर्तपुर से बुलवाया था। पुलिस कल रात से जो हमारे SP साहब है, वो, मैं खुद, हमारे तमाम अफसर CCP साहब भी, हम इस एक लम्हे के लिए भी हमने इससे तवज्जो नहीं हटाई। पुलिस ने वाकये में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मामूली सी बात पर 3 भाइयों के कत्ल का वाकया अदम बर्दाश्त और अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल की निशानदही करता है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मुलविस मुलजिमान को जल्द कैप्टन किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में साउथ जोन पुलिस के हाथों गिरफ्तार खरोला गैंग के 3 कारिंदों ने अहम इंकशाफात कर दिए। मुल्जिमान का कहना था उन्होंने 10 सितंबर को पिंडी फतेह जंग इंटरचेंज पर फरार होते हुए एडिशनल IG मोटरवे पर हमला किया, जिसमें एडिशनल IG जख्मी हो गए और उनका भाई जाँ बहक हो गया था। मुल्जिम सिकंदर ने बताया कि गिरोह के सरगना बिलाल और तमाम कारिंदों का ताल्लुक पेशावर से है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बिलाल ग्रुप पंजाब में 250 से जायद वारदातें कर चुका है और मुल्जिमान के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज हैं। मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही
शफाअत की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन। आकाए दो जहां पर लाखों दुरूद व सलाम, मुहसिन इंसानियत खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, तैयारियां मुकम्मल। कराची समेत मुल्क भर में चिरागा है। और आपको बता दें इसी सिलसिले में गली गली कूचे कूचे रोशनियों से जगमगा रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।